So today we will start with this chapter, Nazism and the rise of Hitler. What was Nazism? Who was Hitler? Everything we will talk about later. Firstly, we will just move with one of the incident mentioned here. यहाँ पे एक incident दिया हुआ है that it is a time of 1945 and a child named Helmut. He is 11 years old. He's lying in his bed and he is overhearing his parents who are discussing over some issue. And his father, he is a physician, and both his mother and father are discussing, where the father is saying ki now it's the high time, and he has just two options with him. Either he will be killing his entire family, or he will be committing suicide he was only going to commit the suicide. Either he will suicide or he will kill the entire family. So this, which was being discussed, this was definitely having a shock for the child. Further, the father also continued that now the allies will do with us what we have done with them. अलाइज क्या थे वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अलाइज कुछ कंट्रीज थी, एंड he was having this fear that something not good will be there with him. So he wanted either to kill himself or kill the entire family. Anyhow, the child heard these words, and the next day his father shot himself in his office. And when he saw the father's uniform, which was blood stained, he was so traumatized, and he was traumatized to such a level that he refused to eat food in his home for the next 9 years, because he feared that his mother might poison him. Because he had heard parents talking where the father said that he is going to kill the entire family, तो उसको ये डर रहा कि शायद अब उसका फादर नहीं मार पाया तो मदर ही उसको पॉइजन देके मार देगी. So you can imagine what the condition of that child would be. He was not knowing who was Nazis, he was not knowing who were allies, but he feared that his own life is in the danger and the mother may kill him anytime by giving poison in the food. Anyhow, who was his father? His father was a physician, but his father was a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. नाजी क्या है? नाजी आप आगे पढ़ेंगे that नाजी was a party, political party थी ये. बट वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि उसकी जो आइडियोलॉजी थी that took a form of a system. जो नाजी पॉलिसीज थी वो एक सिस्टम का उसने एक फॉर्म ले लिया, और वो एंटायर सिस्टम जो था वो एक नाजिज्म कहलाया, राइट. और नाजिज्म जो था उसके आप कह सकते हो टू वेज ऑफ वर्किंग थी. एक तो था कि अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोगों में अपने आप को पॉपुलर करना, राइट. अपने प्रोपोगेंडा करके, पॉलिसीज हैं एजुकेट करके, बुक्स चेंज करके, या बुक्स में ही एडोल्फ हिटलर का प्रेज करके, लोगों को थोड़ा सा धमका के कि यस यू हैव टू फॉलो हिम एंड ऑल. ये सारे जो प्रोपोगेंडा के वेज होते हैं, एक तो उससे पॉपुलर करना. सेकेंडली, बाय किलिंग द अदर पॉपुलेशन सो एज टू इंक्रीज देयर ओन नंबर, राइट. सो ये दो तरीके से इन्होंने काम किए, दोनों ही आइसोलेटेड एक्ट से, दोनों ही एक दूसरे से अलग एक्ट से. और ये जो नाजिज्म था ये एक तरह से स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था जिसने पूरे जर्मनी को और पूरे यूरोप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था. एंड नाउ यू विल कम टू नो कि व्हाई दैट पर्सन हैज किल्ड हिमसेल्फ. और ऐसा क्या किया जर्मनी ने, कैसा क्या किया हिटलर ने, एंड व्हाई ही फियर्ड कि व्हाटएवर these people has done, the same will be reverted back to them. So it is about May 1945 and the Germany surrendered to the Allies. Allies क्या थे? Allies का मतलब होता है together और you can say alliance of few of the parties. जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि
अलाइड पार्टीज हैं हमारे, अलायंस हुआ है एंड सो ऑन. सो ये अलाइज क्या थे? यूएसए, यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस, ये कंट्रीज थी. इसमें जो यूएसए था, यूएसए हैड ज्वाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एट अ वेरी लेटर स्टेज, काफी देर बाद ज्वाइन किया था. बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने इनिशियल स्टेजेस में 1939 के आसपास इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन कर लिया था. राइट तो यूएसए ने कब ज्वाइन किया? जब उसे लगा कि जापान जो है, जापान वॉज फॉरवर्डिंग टूवर्ड्स द यूएसए. जापान भी अकेला नहीं था, जापान, जर्मनी, इटली, ये एक अलग ग्रुप था जिसे हम कहते हैं एक्सेस पावर्स. यूएसए, यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस, ये अलग ग्रुप था जिसे अलाइड पावर्स कहते हैं. तो ये जो वर्ल्ड वॉर था, इट वाज एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू पावर्स, अलाइड एंड द एक्सेस वन. तो जर्मनी, इट वाज अ स्ट्रॉन्गर वन, और जापान जो था, ये सारी जो एक्सेस पावर्स थी, इसमें जापान वाज आल्सो हैविंग अ गुड, यू कैन से इट वाज अ स्ट्रॉन्गर वन. तो इट स्टार्टेड फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स द यूएसए. उसने यूएसए नेवल बेस के ऊपर अटैक कर दिया. देन यूएसए एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 2 atomic bombs were dropped on Japan, Hiroshima and Nagasaki, and then the Japan had surrendered. And since then, Japan जो है, it had never been involved in any of the war. उसने अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लिया और उसके बाद कभी भी किसी वॉर में जापान जो था वो इन्वॉल्व नहीं हुआ. एनी हाउ, सो इट वॉज द टाइम जब जर्मनी जो था वो हार गया एंड इट हैज सरेंडर्ड. एंड एट दैट टाइम जितने लोग जो हिटलर के फॉलोअर्स थे या हिटलर को मानते थे, वो उस समय इतना डर गए थे कि कईयों ने तो दे हैव कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इटसेल्फ. जैसे कि इसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, he and his entire family has committed suicide in the Berlin bunkers. And at the end of the war, 1945 में war end हो गई, तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया. ट्रिब्यूनल मीन्स इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जिसमें कि वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर था कि वॉट एवर जर्मनी हैज डन, दे शुड बी पनिश फॉर इट. तो जर्मनी में ही जगह है नर्मबर्ग, जहां पर ये एक ट्रायल हुआ था, जहां पर केस चल रहा था. उस आप कह सकते हैं वहां पर द केस अगेंस्ट द जर्मन, केस अगेंस्ट द नाजीज वाज देयर, और उनके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए गए. एंड चार्जेस वर क्राइम अगेंस्ट पीस, यू कैन अंडरलाइन, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. और जो जर्मनी का टोटल कंडक्ट था ड्यूरिंग द वॉर, उसके जो एक्शंस है, जिस ढंग से उन्होंने वॉर भी लड़ी थी, दैट एंटायरली वाज द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. और अदरवाइज भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है, दैट इज द, यू कैन से, वेरी सीरियस क्राइम माना जाता है. वो बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है, जिसके लिए पनिशमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा हार्श जो है वो हो जाती है. फाइन. सो ये जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल था, वहां पर ये इनके ऊपर केस चला, और केस में जैसे क्राइम अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी के का केस इनके ऊपर डाला गया. और एक चीज इसमें जो हुई कि इतना, जैसे जर्मनी ने इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से वॉर भी लड़ी या लोगों को भी डील किया था, तो उस हिसाब से इनकी पनिशमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती थी. दे शुड हैव बीन पनिश्ड very very, you can say, in the same harsh manner the way they had committed the crime towards the people. But what had happened कि इस ट्रिब्यूनल में सिर्फ 11 नाजीज जो थे उनको डेथ सेंटेंस मिली, और जो बाकी नाजीज थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट. So these allied powers, they had not been harsh to the Nazis. They could not be harsh to the Nazis there. उसका रीजन क्या है कि अलाइड पावर्स ने इतनी नरमी क्यों दिखाई थी, वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे. एनी हाउ, अंडर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने क्या किया था? इट हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर. जीनोसाइडल का मतलब क्या होता है? किलिंग द पीपल इन लार्ज नंबर. वॉर्स के नाम पर ही उसने, जो जर्मनी था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था. वो डाटा अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी शॉक्ड टू नो दीज ऑल वर द इनोसेंट पीपल्स. एंड
The number of people killed included 6 million Jews. 60 lakh, 60 lakh Jews were killed. Right? और रीजन क्या था? रीजन ये दिया गया कि जो Jews थे, they killed Jesus Christ. Right? And he himself being the Christian, he hated the Jews. और उसके पास Jews को hate करने का कोई रीजन नहीं था. जो Jews थे वो since Middle Ages, that clan had been a suppressed clan. Jews इजराइल में ज्यादा होते हैं और लेकिन फिलहाल तो वो यूरोप में भी काफी ज्यादा स्प्रेड है ये. तो ये मिडिल एजेस से ही एक बहुत सप्रेस्ड क्लास रही है. Right? Everyone used to suppress them in one or the other way. So when this Hitler he was growing up, तो जब he also has seen कि एक suppressed class है, तो एक वो back of the mind रहता है कि suppressed है तो that will be suppressed only. तो with no reason he developed the hatred towards the Jews. For no any particular reason, he just developed the hatred towards the Jews because that class had already been suppressed. So on the back of the mind he was having this impression and he had started killing Jews. जो main इसका जो एक hatred थी हिटलर की वो निकली ही Jews के ऊपर थी. सबसे ज्यादा उसने Jews ही मारे थे. Then is 2 lakh gypsies. Gypsies जो है now they are spread over a large area of Europe और ये एक nomadic tribe है, warrior tribe है और ये अपने आप को कहता यूरोपियंस है. बट पीछे एक इनका एक जीन्स टेस्ट किया गया था, इनका डीएनए टेस्ट किया गया था, तो उससे ये पता लगा था कि इनका ओरिजिन जो है दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया. जो जिप्सीज हैं इनका नॉर्थ ऑफ इंडिया में इनका ओरिजिन है एंड दे वर नोन एज द रोमास हियर. वॉरियर ट्राइब थी इंडिया में और उसके बाद दे हैड बिकॉज बीइंग द नोमैडिक दे शिफ्टेड और दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स. और इस समय ये जो जिप्सीज हैं ये पर्शिया या जो ईरान है आज का वहां पर भी काफी ज्यादा. ये इंडिया से वैसे मूव करके चले गए थे पर्शिया की तरफ. राइट? पर्शिया जो है एज सच टुडेज ईरान इज है. एनीहाउ 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, जो पोलैंड के जो लोग थे वो भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन और 10 लाख पीपल वर किल्ड. ये सिविलियंस थे, दे वर नॉट द सोल्जर्स. जो आम एक पब्लिक थी वहां की उसमें भी उनको मारा गया. 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled. 70,000 Germans जो लगा इनको कि वो mentally और physically disable हैं, उनके किसी काम के नहीं है, तो उन्हें मार दिया गया. And besides this, many were there who were the political opponents also. उनका तो कोई नंबर ही नहीं है जो political opponents है. Political opponents means those who went against Hitler. हिटलर ने अपनी ही पार्टी के कितने मेंबर्स को मार दिया था ओनली ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट दे वर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ हिटलर. राइट? तो मतलब ही वाज सच अ क्रूअल पर्सन दैट he could not face the opposition. He was having this perception that everyone should be in favor of him. उसका एक determined, he was very determined कि जो जर्मनी है इट शुड बी अ पावरफुल कंट्री और द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ही वांटेड टू कंकर द एंटायर यूरोप. कि पूरा यूरोप उसने जीतना है और जो जर्मनी है दैट शुड बी द वर्ल्ड पावर. एक तरह से तो हम कह सकते हैं ही वाज कंट्री को बहुत ज्यादा एक उसके पास नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा थी उसके अंदर. Right? He just thought about Germany only. कि जर्मनी में प्योर ब्लड लोग होने चाहिए, जर्मनी वर्ल्ड पावर होनी चाहिए एंड सो ऑन. और ये सब चीजें इसमें ऐसी क्यों आई दैट ऑल्सो वी विल रीड इट आउट. Anyhow, Nazis devised an unprecedented means of killing people. कैसे मारते थे वो लोगों को? By gassing them in the various killing centers like Auschwitz. Auschwitz भी वहां पर जगह है जर्मनी में. गैस चैम्बर्स बनाए जाते थे और गैस चैम्बर्स में क्या होता था कि जैसे एक छोटा सा रूम होता था और उसमें छोटे छोटे होल्स होते थे, वॉल्स में होल्स होते थे और दे वर कनेक्टेड टू द गैसेस आउटसाइड जहाँ पे पॉइजनस गैस के साथ अटैच होता था. तो वहां से
जब ये लोगों को अंदर डाल दिया जाता था तो गैस रिलीज कर दी जाती थी, रूम्स बंद कर दिए जाते थे। अभी आगे आप लोग बुक में कुछ फोटोज देखेंगे, देन यू विल जस्ट कम टू नो कि हाउ टेरिफिक इट वाज। उसके बाद गैसेस रिलीज कर दी जाती थी, लोग सफोकेशन से मर जाते थे। और कई बार तो ऐसा होता कि छोटे छोटे रूम्स में बहुत सारे लोग भर दिए जाते थे जो सफोकेशन से वैसे मर जाते थे। I mean, he was, you can say, mentally sick person there. कि I mean, he just used to kill the people कि ये कुछ communities हैं जो बिल्कुल खत्म ही कर देनी है। इस intention से he had started killing the people. Anyhow, many were the Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many other were imprisoned for life. द रिट्रीब्यूशन डिड कम। पूरे वर्ल्ड से ये कि प्रेशर था कि जो पनिशमेंट इनको दी जा रही है नाजीज को, या जो ब्रुटैलिटी इन्होंने दिखाई, उस हिसाब से जो पनिशमेंट है ये तो बहुत ही कम है, कि इनको सेम पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी, बिकॉज दे हैड बीन वेरी वेरी हार्श टूवर्ड्स द पीपल। बट द अलाइड पावर्स, they had not been so harsh on the defeated Germany as they had been after the First World War. So now you should be knowing what happened after the First World War. See, क्या हुआ था जब First World War हुई थी, तो after the First World War Germany was defeated, right? उस समय भी ये अलाइड पावर्स का अपना ग्रुप था। ये अलाइड पावर्स यही थी, यूके, यूएसएसआर, यूएसए एंड फ्रांस, ये चार अपनी कंट्रीज थी। उसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो यूएसए था उसने काफी लेट ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर, बट एनी हाउ अलाइड पावर्स ये चार थी, राइट? सो जर्मनी जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इट वाज डिफीटेड, और जब ये डिफीट या हार गया था तो उसके बाद जितना भी वॉर लॉस था, जितना भी नुकसान हुआ वॉर में, वो सारा का सारा इंपोज किया गया जर्मनी के ऊपर। Germany had to pay a large amount in the form of gold, in the form of its own territories, in the form of its coal mines, right? इन सब से इस जर्मनी था उसने वो सारा वॉर का जो एक रिपरकशन है या वॉर का जो लॉस था वो रीपे किया। इट मीन्स कि जो अलाइड पावर्स थे दे वर सो हार्श ऑन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी के ऊपर ऐसी कुछ ट्रीटीज जो थी वो लगा दी गई थी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस ढंग से जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया, उसको बहुत ह्यूमिलेट किया गया, उसकी आर्मी खत्म कर दी गई, उनके कितने टेरिटरीज ले ली गई, और ये जो लाइट पावर से इन्होंने जर्मनी के कितने एरियाज आपस में बांट लिए, एंड जर्मनी वॉज लेफ्ट विद नथिंग। और जर्मनी का उस समय ये हाल था कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी की जो वैल्यू थी उसकी, फ्रैंक जो होता है उसकी करेंसी है जर्मनी की, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी। और वहां पर फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, दे हैड स्टार्टेड प्रिंटिंग द नोट्स, राइट? उसने क्योंकि इतनी ज्यादा इकोनॉमी का हाल खराब हो गया था, नोट जो थे वो करेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा प्रिंट करने शुरू कर दी। अब इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी जिससे कि करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई। तो उस समय हालात ये हो गए थे जर्मनी में कि इफ अ पर्सन हैड टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, ही हैड टू कैरी अ सैक ऑफ करेंसी। मतलब बोरा भर के अगर करेंसी नोट्स लेके जाएगा तो ही विल बी एबल टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो उसके बाद फिर जब इतने बुरे हालात हो गए थे, देन यूएसए हैड इंटरवीन्ड, उसने जर्मनी को लोन्स दिए, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी उसको स्टेबल किया। लेकिन वो जो ह्यूमिलेशन था, जितना जो लॉस था जर्मनी का, उससे क्या हुआ कि जो हिटलर था वो उस समय आर्मी में ही था, एंड ही वांटेड टू टेक रिवेंज नाउ, कि whatever atrocities, whatever the war repercussions were imposed on Germany, so he now wanted that should be, I mean he wanted to take revenge from the allied powers। और यही रीजन था कि जो हिटलर था वो एक इतना ज्यादा एक आप कह सकते हैं क्रूअल बन गया, बिकॉज उसकी कंट्री के साथ जो भी अलाइड पावर्स ने किया था, तो ही कुड नॉट बियर दैट एंड ही वांटेड टू कंकर दोज कंट्रीज, ही वांटेड टू कंकर द एंटायर यूरोप इटसेल्फ
and he wanted his own country to be a supreme power. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ नो डाउट बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, और शायद यही रीजन था कि अब अलाइड पावर्स ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन व्हेन द जर्मनी वाज डिफीटेड, तो दे डिसाइडेड कि नाउ दिस टाइम दे विल बी नॉट हार्श ऑन जर्मनी. नहीं तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर ऐसा ही एक और लीडर खड़ा हो जाता है टू टेक द रिवेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो उस समय क्या होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर जो है वो शायद दोबारा हो जाए. तो ये एक रीजन था जिसके कारण उन्होंने ये जो हार्श ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया. एंड आई मीन एवरीवन came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of the First World War. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी जर्मनी के साथ हुआ, that was the main reason behind the rise of the Hitler. Otherwise, जो Hitler, he had been a very you can say very good leader itself. और जो उसके खुद के जो I mean जर्मन लोग थे, I mean what he wanted कि जो जर्मनी में भी जो लोग हैं, that should be a very quality of people should be there, qualitative people should be there. अगर वो प्योर ब्लड नहीं है, अगर प्योर जर्मन ब्लड नहीं है, तो they don't have any right to live. Either they will leave the country or they will be killed. कि those who are living in the Germany, they should be having a pure German blood. So उस समय की अब आप आगे पढ़ेंगे कि किस ढंग से उसने इस चीजों को लिया कि if a child he was not of German origin, right? So that time that small children were just snatched away from the mothers, and I mean the mothers, they were expelled from the countries, and they were either killed or they were expelled. तो ये इतनी ज्यादा जो इसकी पॉलिसीज थी, that were not at all so much, I mean that was so much of, you can say, inhuman. Anyhow, जो हिटलर था, he himself जब 1945 में जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो he also feared the same thing कि जो उसने किया है लोगों के साथ, तो अब अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ सेम टॉर्चर किया जाएगा. और he even feared कि शायद उसको भी गैस चैम्बर्स में जाके मार दिया जाए. तो he himself committed suicide in his bunker in 1945. इवन जो ये गैस चैम्बर्स भी होते थे ना, या जहां पर भी ये लोगों को मारता था, सिर्फ एक गैस चैम्बर्स नहीं होते थे, ये एक छोटा सा तरीका होता था मारने का. ही वॉज हैविंग मेनी अदर क्रूअल वेज ऑल्सो टू किल द पीपल. तो जहां पे इसके सेंटर्स होते थे, वहां पर बाहर भी ना, अगर बाई चांस कोई यहां से बच के भाग भी गया, तो इलेक्ट्रीफाइड वायर्स होती थी. इलेक्ट्रीफाइड वायर्स होती थी कि इन केस यहां से बच के भाग गया, तो बाहर जाके भी वो दैट पर्सन इज गोइंग टू किल. I mean, in this way, he used to he used to treat the people at that time. Anyhow, tomorrow we will just discuss about the Weimar Republic, or what the reasons were there, which, I mean, after the First World War, what has happened which gave rise to the Hitler.